Content creations will become another bachelor degree in coming days. Correct. This is the future of our India and digital economy. To create one reel, if it is reaching 1 lakh plus views, so उसका जो है 0.01% कन्वर्शन आप उसका एक्सपेक्ट कर सकते हो. अगर 1 लाख प्लस पीपल्स उसको वॉच कर रहे हैं तो एटलीस्ट 20 से 30 कस्टमर्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो फुटफॉल हु इज़ कमिंग बाय वाचिंग दैट रील. आई नाउ इफ आई ओपन माई इंस्टाग्राम डेली 4 to 5 कोलैबोरेशन रिक्वेस्ट विल कम. तो कितना फिर भी मतलब पर कोलैबोरेशन डिपेंड्स करता है, मतलब कैसे कैटेगरी है? अगर आपके इतने फॉलोअर्स है तो आपको इतने का कोलैबोरेशन रिक्वेस्ट मिल जाएगा. हाउ डज इट वर्क? Welcome back to another exciting episode of House of Manthan, and today we have someone who is having a 1 lakh followers across YouTube, Instagram, Facebook and all over the social media platforms. So today we are going to talk about how the content creation journey can become your second source of income. How the creator, as we already know that creator economy is going to boom till 2030 and there are more initiatives from the government itself. So how someone who is just starting a business or who is running business don't know anything about creator, how to promote their business, how to promote their business on social media and how to make money out of it. So that all we are going to learn today from this masterclass from Shakir Akki. Welcome Shakir. Thank you so much for the invite. Like as you mentioned, I think if you go through this year's our 25-26 financial year of the budget, our government of India creating more than 500 plus content creation lab, like any graduation, BBA, BCom, BCA, like that content creations will become another bachelor degree in coming days. Correct. This is the future of our India and digital economy. So creating in content like earlier, if the kid is doing some dance, making some reels, they used to shout on the kids. Now it will be no more like that, because that reel is reaching more people, getting millions views, thousands of people watching and reacting on that reel, commenting on that reel. So it is obviously it is gaining the people's interaction, and this is it is gaining the it is gaining the people's attention mainly. अभी तक के आपने कैसे स्टार्ट किया और आप अभी कॉर्पोरेट में भी वर्क करते हैं? Yeah. Still you are being very active on social media. So how you're managing it when you started? Coming to my story, there is one small village in Uttar Karnataka, Haveri district, Hangal. Small village, around 200-300 homes, households, like Hirur, that village name is. So I was very shy in my school days. I think I still remember I was in 4th or 5th class. My class teacher told me we have to play in Independence Day, some school function, Jallianwala Bagh. I think you remember Jallianwala Bagh. In that play, many of students, my friends, used to play some different Nehru role, another Indian citizen role. Then my sirs told me, why can't you play this General Dyer role? He colored my hairs. I played first my General Dyer that role. So I think that was the first stage when मेरा जो stage fear था, सब कुछ वहाँ से it will ruined out. तो सब कुछ वहाँ से चला गया. So then I started in college days as well. I used to play in dramas, and post my graduation 2016-17 I used to give the auditions for the films. I do acted in Kannada films, Kannada 2 feature film. And Which ones exactly? Yeah, that is like more documentary film. And the second was Preeti Ke Kone Illa. It was like short film. That short film, like the Karnataka state government given the award for that one. Even they have given the permissions to that short film to play in all the schools. So earlier I think in our school days, आपको पता होगा स्कूल में पहले DVD दिखा के फिल्म, मोटिवेशनल फिल्म दिखाते थे. उस तरह से उस समय जब थे 2017 में, I think Tanvir Seth was the education minister that day. Even Siddharamaiah was the chief minister that day also. So he was given the letter and we sold out that to vendor. He went across the government school of Karnataka and he shown that school that play that whatever our short film is there. So जब से मेरा जो ये था फियर था वो थोड़ा कम हो गया, स्टेज फियर. देन सडनली आई जॉइन. एक्चुअली क्या हुआ, देयर वाज वन इंसिडेंट हैपन when I used to go the auditions and all. Like we have 9 siblings. One of my elder brother is like Maulvi, Hazrat Maulana, you can say priest. So he told, you can't do anything like this. You have studied well. Why can't you go for a simple 9 to 6 job? Why you are doing like this, like that? So then I drop everything. I quit my whatever the passion was there. So I joined my job. So during those days also,
there is something from inside. कुछ तो करना है ज़िंदगी में, कुछ तो है. Because I have faced like Red Epic camera, Dragon camera, big camera. So I used to remind के लाइफ में अगर मेरे पास कैमरा भी नहीं है तो it's not about आईफोन का छोटा सा कैमरा और रेड एपिक का बड़ा कैमरा. इट्स अबाउट मी. सो जो भी वो कैमरे में आ रहा मैं ही आ रहा हूँ, मेरे को कुछ ना कुछ मेरा टैलेंट दिखाना है. सो बीइंग कॉर्पोरेट एम्प्लॉई तो मेरे को ये मैनेज करना था. सो वन ऑफ माय सिस्टर असिस्टेड मी कि व्हाई कांट यू स्टार्ट एन यूट्यूब. आई थिंक 23 आई स्टार्टेड 3 years back my YouTube channel. So she told you have good humor, you have the good comedy skills, why can't you start? Like she assisted me, one of my younger sister, she's recently been married now. So she told me, so then I realized how let's try that one. So like this my journey has been started. शुरू ऐसे मजाक में किए थे, अभी मजा आ रहा है. आपने मेंशन किया कि 2023 से यू स्टार्टेड योर जर्नी, तो अभी आप एग्जैक्टली क्या क्या करते हैं और आपने कैसे स्टार्ट किया? या एक्चुअली जब मैं स्टार्ट किया, पहले मेरा यूट्यूब पहले आया 3 साल पहले. उसके बाद लेटर आई थिंक इट्स बिन 1.5 year आई स्टार्टेड माय इंस्टाग्राम. दैट इज लाइक 21.5 समथिंग इज फॉलोअर्स. यूट्यूब इज क्लोज टू 50,000 सब्सक्राइबर ऑलरेडी. सो फर्स्ट आई यूज्ड टू गो रेस्टोरेंट्स. I used to visit there. I used to have the food. I used to tag story of that hotel, because earlier we do have like 400-500 followers. No one will call for the collaboration, you know very well. So मैंने honest review start किया. उसके बाद मैंने क्या किया, I used to collect the testimony, moreover exploring from my words to the restaurant, ambience, food taste, everything. I used to collect the testimony of the customers who are visiting over there, who are sitting on the dais, who are enjoying the food along with their families. I used to collect the feedback. So that will work out more, because being an Instagram influencer, YouTuber, everyone knows will get it paid for to give the positive reviews. But from the customer taking the reviews, no, that will more impactful. तो वहाँ से मैंने स्टार्ट किया. एंड फूड रेस्टोरेंट, होटल्स का. उसके बाद जो एविएशन, now I am become the face of the Highcraft Aviation. Helicopter joyride होता है. And it will helping the people's lot now, because whenever I start something to create one reel, if it is reaching 1 lakh plus views, so उसका जो है 0.01% कन्वर्शन आप उसका एक्सपेक्ट कर सकते हो. अगर 1 लाख प्लस पीपल्स उसको वॉच कर रहे हैं तो एटलीस्ट 20 से 30 कस्टमर्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो फुटफॉल हु इज कमिंग बाय वाचिंग दैट रील. एंड दैट रियली हैपेंस. मैं जब स्टार्ट किया फूड का तो 1-2 ऐसा पूरा, आई एम बीइंग ऑनेस्ट, आई विल नॉट प्रमोट लिकर, any kind of alcohol things, any kind of online games and everything. That everything I will not promote. Only is the food taste, everything I used to do. And उसके बाद थोड़े दिन मोटो व्लॉगिंग किया. So that will not, लेकिन फूड व्लॉगिंग जैसे ही किया my channel is boomed up. तो उसके बाद there is some creators community, bloggers community, lot of many bloggers who supported me, like many blogs, Swati blogs, Adnan, Rayyan, and many. Raj Biswas, one of my best colleague and my friend, Mr. Raj Biswas. He is Bengali, but the way he speak Kannada, no one will match, because being in Bangalore, settled down from 2-3 past decades, 2-3 decades, no one can speak the Kannada fluently. Like uta agi diya, that too also not pronounced properly. That guy literally, he taken the dictionary Kannada words, he used to interact me in Kannada. The amount of respect he is having on our mother language is very good. That's how the community build up. And जो collaboration था, bloggers table होता है बहुत सारा, they used to invite me for the bloggers table. Now like earlier I used to struggle to get like कहीं पे weekend आएगा तो मजा आएगा, because in a 9 to 6 job it's not easy to go in evening every day. So whenever the weekend will come, I used to plan my weekend properly. At least Saturday Sunday 2 दिन है तो I will plan each day 2 blogs. मॉर्निंग मेरे को फर्स्ट हाफ में कहाँ जाना है, इफ लाइक आई स्टार्टेड माई डे फ्रॉम रामेश्वरम कैफे, देन सेकेंड हाफ आई विल गो फॉर कमनहल्ली फॉर सम नॉन वेज रेस्टोरेंट, एंड देन संडे आई विल वेक अप गो टू सम रिजॉर्ट. सो लाइक दैट आई यूज्ड टू प्लान माई डे. एंड वीकडेज में क्या होता था, वॉट एवर आई शॉट इन 4-5 वीडियोज जो भी थे, लॉन्ग वीडियोज हो, इंस्टाग्राम का हो, वीकडेज में आई ओनली यूज टू सिट पोस्ट माई ऑफिस वर्क. इवनिंग आई यूज टू राइट द स्क्रिप्ट एंड प्लान हाउ टू पोर्ट्रेट दैट वीडियो. So like that, editing everything. And now if I open my Instagram, daily 4 to 5 collaboration requests will come. It's all about like whatever the hard work we are putting in that one, right? So nothing can happen overnight, I can say. It will take some time.
because I used to last year I used to post my videos like 2000 3000 views. Now I can see my dashboard like 6 million reaches there. So it's about all about consistency. Like Instagram algorithm, daily at least one reel if you're posting, it will take a high. So this is how my content creation journey started, and bloggers community, and like thank to my wife. I do have 3 years kid. I am blessed with the princess, so I have to manage. I have to give the time to the family as well, and I have to do the blogging as well. So this is my I used to do this one. Like what happened now? If I do complete blogging, I will resign my job. So what will happen? उपन के अचार खाने के साथ अचार जो है अच्छा लगता है, बट यू कांट ईट होल अचार एज ए खाना, राइट? सो लाइक दैट. तो करते रहेंगे जॉब, दैट इज आवर प्रॉपर सोर्स ऑफ इनकम, दैट इज आवर ब्रेड एंड बटर. 100% वी हैव टू डू फॉर दैट वन. 100% वॉट एवर आवर टास्क विल बी असाइन, वी हैव टू डू दैट वन, वी हैव टू जस्टिफाई. सो स्टार्टेड माई जर्नी, स्टार्टिंग to hotels, everything. Then everything like अभी जो है collaboration तो बहुत ज़्यादा है. I will tell one story what happened in Chickpete. There is one garment shop called Nipra Garments. It's like 4 decades old. वो 3rd जनरेशन से जो है उनका शॉप चला रहे हैं. बहुत बड़ा शॉप है, अंदर है. इफ़ यू गो द चिकपेट इज़ वन ऑफ द सेल्स हब, एशिया 2nd बिगेस्ट मार्केट. फर्स्ट इज चाइना का है, 2nd जो है हमारे चिकपेट का है. हाँ, तो वहाँ पे जो है बहुत सारे आपको डीलर्स मिलेंगे, क्लॉथिंग के मिलेंगे, इलेक्ट्रिकल आइटम्स के मिलेंगे, होम अप्लायंसेस के मिलेंगे. तो वहाँ पे क्या हुआ, आई वेंट, ही कॉल्ड मी एंड आई डन द रील. 2-3 चला गया. 10-12 हज़ार यूजुअली जो व्यूज़ आते हैं, दैट टाइम लाइक 12-13,000 फॉलोअर्स आई डू हैविंग. तो सम 2-3 डेज़ के बाद मेरे को अचानक फ़ोन आया, भाई आप बहुत कॉल आ रहे हैं मेरे को. अर्ली मॉर्निंग दैट गाय कॉल्ड मी, सर मेरे को बहुत कॉल आ रहा है. क्यों, क्या हुआ? नहीं, इंस्टाग्राम से रील देख के. दैट रील वेंट लाइक 2.5 मिलियन. तो उसको इतना कॉल्स आया, तो वो मेरे को बोल रहा है, भैया हम 3rd जनरेशन से काम कर रहे हैं, बट इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया. बट वी हैव गुड क्वालिटी, बेटर क्वालिटी, बट जिस तरह से हमको शोकेस करना था हम नहीं कर पाए. अभी जो है दैट्स द पावर ऑफ द सोशल मीडिया. पीपल्स आर कनेक्टिंग हिम डेली. अभी 9 बजे उसका दुकान खुलता है तो 8:30 बजे से लोग वहाँ पे लाइन लगाते हैं. दिस इज द पावर ऑफ द सोशल मीडिया एंड हाउ दे आर यूटिलाइजिंग दैट वन. एवरीवन, अब देखो क्या रहता था ना, कैटलॉग रहता था, हर एक प्रोडक्ट सर्विस प्रोवाइड करते हैं. इफ यू वांट टू बिल्ड सम ब्रांड, व्हाट यू विल डू, यू विल गो फॉर ATL and BTL activations for that one. Brand enhancement के लिए whatever kind of activities, whatever budgets you will flow. Like ATL में क्या होता है, outdoor hoarding, OH hoarding, banners, big hoardings, advertisements. BTL में क्या होता है, below the line आप क्या कर सकते हैं, reach out कर सकते हैं. Like RWS, we do have 7,000 plus residential welfare association in across the Bangalore. सो वहाँ पे जो है अपना ऐड लगा सकते हैं, वहाँ पे जो है अपना न्यूज़पेपर में इंसर्शन अपने प्रोडक्ट का कर सकते हैं. लॉट ऑफ थिंग्स यू कैन डू फॉर योर ब्रांड एनहांसमेंट, योर ब्रांड रीच. बट इंस्टाग्राम द ओनली थिंग कि ऑडियंस मिल जाएगा. यहाँ पे हर तरह का आपको ऑडियंस मिल जाता है. तो यहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट का मारो, हैशटैग लगाओ, अच्छे से इसको क्रिएट करो, बनाओ और इसको जो है पब्लिश कर दो. इमीडिएटली कुछ नहीं होता है, इट विल टेक सम टाइम. आप इफ यू आर कीप रिपीटिंग द सेम थिंग, इफ यू आर कीप पोस्टिंग द कस्टमर टेस्टिमोनीज, फीडबैक्स, सो डेफिनेटली इट विल रीच टू द टारगेटेड ऑडियंस. तो इंस्टाग्राम पे आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से क्रिएटिविटी ज़्यादा मैटर करती है या ह्यूमन साइकोलॉजी से रिलेट करना ज़्यादा मैटर करता है? Of course, it's a combination of both creativity and human psychology. If I will tell one example, there is one brand called Albeck Restaurant. मैं क्या करता हूँ, वेलकम टू अल्बेक रेस्टोरेंट, एम्बियंस दिखाता हूँ, देखिए कितना बेहतरीन एम्बियंस है. पीपल विल स्किप दैट रील. आई विल डू आइदर वन हुक स्टेप ऑन दैट वन. मैं क्या करूँगा, होटल में जाके बैठूंगा, लोग कुछ बस क्रिएट करूंगा, देन ओनली इट विल गेन द मोर अटेंशन ऑन दैट वन. तो ये क्या होता है, ह्यूमन साइकोलॉजी को पहले हम अट्रैक्ट कर रहे हैं. जस्ट स्टार्टिंग 10 सेकेंड ऑफ द रील इज एवरीथिंग फॉर दैट वन. तो मेरा आप जितना भी कंटेंट देखो, तो आई विल गो एंड रैंडमली आस्क सम गाय, मेरे को अच्छे से बिजनेस स्टार्ट करना है, कुछ गारमेंट्स का, कुछ फूड स्टॉल का, तो वेयर आई कैन गेट द सजेशन. सो रैंडम गाय विल टेक, बिकॉज इफ आई आस्क सम परफेक्ट गाय ना, सो दे विल, ऑडियंस विल फाइंड आउट कि ये मिलके भगत है इन लोगों की. तो ये जो है रैंडम गाय से बोलने से वो प्रॉपर नहीं उसको प्रोनाउंस कर पाता है, उसकी टूटी फूटी भाषा में जो भी बोलता है, सो इट विल लुक वेरी जेन्युइन दैट वन. तो वहाँ से प्रोडक्ट का जो प्रॉपर जो हम सीन नरेशन होता है, स्टोरी टेलिंग होता है, 10 सेकेंड का हुक स्टेप डाला, उसके बाद जो है स्लाइटली उसको
रील को आगे करते जाएंगे तो वो इट विल रीच मोर ऑडियंस. अगर किसी को आज स्टार्ट करना है व्लॉगिंग, तो व्लॉगिंग अभी भी सैचुरेशन आ गया है या बहुत स्कोप है व्लॉगिंग में? I will tell one example like we have three major platform now like Instagram, YouTube, Facebook. Instagram आप एक नया पेज बनाते हैं तो अभी इट विल लाइक बूस्ट. तो नया पेज बनाते हैं तो उसका रीच ज़्यादा है कंपेयर टू द प्रीवियस पेज. तो प्रीवियस पेज पे क्या है, आई डू हैव एक्सपीरियंस दैट वन प्रीवियसली. मेरा कुछ और एक पेज था जो गेमिंग का था, तो वहाँ पे 1000+ फॉलोअर्स थे. आज उसमें डालता हूँ तो उसमें व्यूज़ नहीं आते हैं. आइदर आपको नया पेज क्रिएट करना है. एंड आई विल टेल वन थिंग वेरी हॉनेस्टली, देयर इज़ नो पेन, देयर इज़ नो गेन. इफ़ यू स्टार्ट टुडे ऑलवेज देर इज ए कॉम्पिटिशन, एवरीवेयर कॉम्पिटिशन. नुक्कड़ में हे गाइस बोलने वाला मिल ही जाएगा आज. तो ये क्रिएटर्स की तो बिकॉज ऐसा क्रिएटर्स को दिखा रहे हैं ना कि दे आर बाइंग लग्जरी कार्स, बाइंग विलास, तो सबको क्या लग रहा है दिस इज द शॉर्टकट वे टू गेट इट डन. बिकॉज देखो ऐसा नहीं करना है. देखो हम क्रिएटिविटी पोस्ट करना चाहते हैं, वी हैव टू स्टिक ऑन दैट वन, वी हैव टू बी वेरी कंसिस्टेंट ऑन दैट वन. ऐसा नहीं कि सिर्फ 3-4 वीडियोस, ऐसा नहीं है. तो उसके ऊपर 100% अब जाके उसके ऊपर आता है. इट्स नॉट अबाउट के ग्रीड नहीं होना है कि इसको हम करने से हमको पैसा आएगा, डॉलर्स में इनकम आएगा. दैट इज सेकेंडरी. I was imagine when I started in 2023 मेरा एक बार YouTube मोनेटाइज हो जाए, इतना पैसा आएगा, उतना पैसा आएगा. Being honest, I'm telling in 2026 now, it's just peanut amount. It's just peanut amount, but the amount you are getting from the each collaboration, that will be very huge. That will be like you will get enough. You can pay your house renters. You can buy some good stuff for you. That will passive income for you, but it will, because the amount you are getting, the collaboration charges you are getting, it's about the hard work which you are consistently done from past previous 2-3 years. This is how it works. Okay. तो कितना फिर भी मतलब पर कोलैबोरेशन डिपेंड्स करता है, मतलब कैसे कैटेगरी है? अगर आपके इतने फॉलोअर्स है तो आपको इतने का कोलैबोरेशन रिक्वेस्ट मिल जाएगा. हाउ डज इट वर्क? I would like to tell it depends on the brand. How big this brand. Okay. If you are taking Cast 24, Spinny, they will promote Domino's Pizza, KFC. Every brand have the digital platform now. I think you can see Colgate still doing the branding. Colgate still doing the ads now. When I was in childhood, the Colgate. अभी हमारे गांव देहात में जाओ, they will not tell के टूथपेस्ट चाहिए, they will tell के Colgate चाहिए, because उनके दिमाग में उतने सालों से बैठ गया है कि Colgate ही टूथपेस्ट है, जो उसका नाम Colgate ही है. उनको नहीं पता कि इट्स एन टूथपेस्ट बोल के. दिस इज हाउ वी हैव टू बी अ ब्रांड है. आज मार्केट में स्टिक एवरी वेल नोन ब्रांड इज डूइंग द डेली बेसिस कैंपेन, बिकॉज उनको मार्केटिंग सर्वाइव करना है. इफ यू स्टॉप डूइंग द मार्केटिंग एक्टिविटीज, promotional campaigns like digital platform, so it will be difficult. Like your question was like 1 lakh plus followers, 10% of that followers you can get it at least. Okay. ऐसा कुछ नेसेसरी है कि आपके सब प्लेटफॉर्म्स मिलाकर इतने होने चाहिए देन यू विल गेट द कोलैब रिक्वेस्ट, या लाइक हाउ डज इट वर्क? कि No, आप सिर्फ actually, इंस्टाग्राम की पर प्लेटफॉर्म बेसिस? No, actually what happened ना, since 2021 और 2020 जब पोस्ट कोविड, जब ये टिकटॉक बैन हुआ, तो सारा जितना भी ऑडियंस था वो सब कुछ इंस्टाग्राम रील्स पे आ गया. उससे पहले इंस्टाग्राम में जो रील का ऑप्शन नहीं था, तो ओनली पोस्टिंग फोटोज, लॉन्ग वीडियोस, ब्लॉगिंग, एवरीथिंग चलता था. तो अभी क्या हुआ, टिकटॉक का जो है पूरा जो टेक ओवर था इंस्टाग्राम में, वो पूरा ऑडियंस यहाँ पे शिफ्ट हो गई, यहाँ पे रील बनाना स्टार्ट हो गया. तो अभी आप एक गूगल करेंगे कि ये जो मेजर 3 प्लेटफॉर्म्स है, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक. यूट्यूब जो है आपको 49% लोग देख के मिलेंगे आउट ऑफ 100. एंड इंस्टाग्राम 72% है. 100 में से 72 लोग जो है इंस्टाग्राम देखते हैं. फेसबुक इज 59%. तो मेजरली क्या होता है ना, यूट्यूब में आई थिंक नाउ दे हैव रिसेंटली स्टार्टेड फॉर दिस कोलैबोरेशन थिंग. वो भी टैग होता है. अगर आपका यूट्यूब चैनल है, हमारे यूट्यूब चैनल से कोलैबोरेट करना है, तो देयर इज वन लिंक विल बी जनरेटेड, वो टैग हो जाता है, बट इट विल बी नॉट विजिबल फॉर द बोथ द प्रोफाइल्स. इंस्टाग्राम में वैसा नहीं होता है. इंस्टाग्राम में दोनों के प्रोफाइल में विजिबल होता है. समझो मैं क्रिएटर हूँ, समवन इज ब्रांड, तो दोनों को वो क्रिएट होता है. यूट्यूब में भी अभी होता है दोनों के प्रोफाइल पे, दोनों शो होता है, वीडियो हो जा रहा है. ओके. एंड यहाँ पे क्या होता है, easily that dashboard can have the access to see
बोथ ब्रांड वाला भी देख सकता है एंड हम भी देख सकते हैं। हम्म, तो यहाँ पे जो लार्जर ऑडियंस रहने की वजह से यूट्यूब का अगर फॉलोअर्स कम भी है, अगर इंस्टाग्राम में है तो इंस्टाग्राम में आपको ज़्यादा फॉलोअर्स है तो इजीली आपको कोलैबोरेशन मिल जाते हैं। मोस्ट ऑफ द कोलैबोरेशन आई गॉट फ्रॉम द इंस्टाग्राम ओनली। तो 90%। आपने स्टार्टिंग में जब आपने स्टार्ट किया था तो आपने खुद ब्रांड्स को अप्रोच किया? आई यूज्ड टू गो होटल्स, हाँ, आई यूज्ड टू हैव द फूड, जो भी उनका सिग्नेचर डिशेस है 4-5 डिशेस ऑर्डर किया, अच्छे से खाया, उसका रील बनाया, मैं उनको टैग कर देता था। After few days, if that reel goes on like 1 lakh 2 lakh views, they used to call me, सर आ जाइए कोलैबोरेशन करते हैं। That's how I started because आपके पास कुछ फॉलोअर्स नहीं है बकेट में तो no one will approach you. After 20,000 30,000 you if you are like small creators, तो उसको एटलीस्ट 2,000 3,000 तो पेओटी मिलता ही है। तो स्मॉल बिजनेसेस अभी भी बहुत हैं जिन्होंने अभी तक कंटेंट क्रिएशन जर्नी स्टार्ट नहीं की है, तो अगर उनको अगर कंटेंट क्रिएशन जर्नी स्टार्ट करनी है आज से, तो कौन सी 3 से 5 चीजें हैं जो आपको इतने टाइम तक देन यू कैन एक्सपेक्ट सम सक्सेस? Yeah, obviously this is one of the good question you are asking because I can see many of the small businesses started like from अगर ब्रांड है स्मॉल बिजनेस है तो उसको रीच आउट करना है। मेरे पास अच्छा प्रोडक्ट है राइट, मेरे पास अच्छा रेसिपी है, अच्छा फूड है, बट द थिंग इज आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड हाउ आई एम टारगेटिंग द ऑडियंस। अभी देखो मैं क्या करूँगा, स्टारबक्स का जो दुकान है, ये जो फ्रेंचाइजी है, मैं जाके शिवाजी नगर में नहीं खोल सकता राइट, तो टीयर 1 टीयर 2 स्टारबक्स वहाँ पे डॉलर्स कॉलोनी में लगाना है जेपी नगर। सो प्रॉपर हमको आइडिया चाहिए बेच सकते हैं प्रोडक्ट को एंड किस टाइप का ऑडियंस इसको प्रेफर करता है, व्हाट एज ग्रुप एंड व्हाट जेंडर विल बी हैव इट। देखो अभी क्या होता है, मेरे पास समझो XYZ एक परफ्यूम का ब्रांड है, परफ्यूम मेरे को ये देखना है, आप समझो कि एक जगह मैंने अपना लगा दिया स्टॉल, परफ्यूम लगा दिया, अपना एक दुकान खोल दिया वहाँ पे, बट रीच आउट कैसे करना है, तो व्हाट विल डू इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, एवरीथिंग। सो सेम कंटेंट विल बी पोस्टेड ऑन इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब एंड फेसबुक एज वेल। तो उसको ना डेली उस पर काम करना है, डेली उस पर 20-30 सेकेंड निकालना है, उसका वेदर कुछ भी ट्रेंडिंग म्यूजिक जो है उस पर रील, प्रोडक्ट का टेस्टिमोनी लेना है, कस्टमर से फीडबैक लेना है एंड मोर थिंग क्या है कि आपको लोकेशन बताते रहना, एग्जैक्टली वो लोकेटेड करता है, सैचुरेट करता है एंड हाउ इज़ द कनेक्टिविटी फॉर दैट वन। आप कहाँ उसको बाइक लेके आ सकते हैं, कार लेके आ सकते हैं, कैसे उसको आप वहाँ पे पहुँच सकते हैं। एंड सेकेंड थिंग क्या है कि ओकेशनल डे में उसको ऑफर्स रन करना पड़ेगा इंस्टाग्राम में, जैसे अभी आ गया वैलेंटाइंस डे के लिए कपल के लिए कुछ ऑफर्स क्रिएट करें उसके लिए, एंड इंडिपेंडेंस डे के लिए पूरा हम तो उसको डेकोरेट करते हैं, दैट्स आवर नेशनल फेस्टिवल, बट उसको जो है उसी थीम पे कुछ ना कुछ इसको इनोवेटिव बना के इंस्टाग्राम में डालना है कि इंडिपेंडेंस डे को लेट्स सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे विद आवर परफ्यूम ब्रांड, तो एक लेंगे तो एक आपको फ्री है। सो दिस इज अबाउट द मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग। सो स्मॉल बिजनेसेस भी अगर कंसिस्टेंसी से इंस्टाग्राम पे डेली रील बनाए, आई विल गिव वन गुड एग्जांपल फॉर दैट वन। इन शिवाजी नगर देयर इज वन गुड वुमेन्स क्लॉथिंग स्टोर कॉल्ड फिजा फैशंस। I was went there with my wife to shopping. So I told I was like I do have Instagram, I will promote your things, how much do you pay? So he asked me, I do have 20,000 followers. Okay, how much do you charge? I told XYZ I charge. So she told me, do you want to check our Instagram? Yeah, she is having 1.2 lakh followers. Okay. She is not doing any editing in Adobe Premium, she is not doing any effects, she is just simply taking her camera, she is capturing the video, complete product video, there is no animation, there is no voiceover, completely just randomly she is taking in basic format, she is uploading that one. This is how every day if you post, definitely 2-3 months if you do with the consistency, result will come out. और आपको क्या लगता है कि एडिटिंग का कितना मतलब मायने रख रहा है अभी, कि एडिटिंग होना चाहिए, बहुत एनिमेशंस होने चाहिए, या रॉ कंटेंट, किस तरीके का कंटेंट अभी ज़्यादा चल रहा है? देखो अभी 2 तरह का ऑडियंस है, एक जो आप उसको अब समझो एक बिरयानी है, बिरयानी के प्लेट को आप अच्छे से इसको पेश कर रहे हो इस पे अच्छा वगैरह, तो उसका भी कैटरिंग का अलग ऑडियंस है। अगर इसको रॉ बिरयानी को ऐसे ही रखो 60 रुपीज़ पर प्लेट तंदूर बिरयानी, उसका भी टारगेटेड ऑडियंस है। Okay. तो मोर देन अगर आपको एक सेल करना है प्रोडक्ट, एक बिरयानी सेल करना है, सम 1 प्लेट ऑफ बिरयानी टू अल्ट्रा HNA कस्टमर, तो उसको जो है प्रॉपर प्लेस पे हमको उसको सेल करना पड़ेगा। हम जाके नेशनल मार्केट में वहाँ पे लगाएंगे तो वो 60 रुपीज़ 70 रुपीज़ में ही बिकेगा वो बिरयानी, तो उसको जो है अच्छे से उसको शोकेस करना हमको आना चाहिए। तो एंड द थिंग इज तो प्रॉपर रीच ऑफ द टारगेटेड ऑडियंस,
तो ये हमने बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ओके। आपने कभी मतलब बूस्ट एड्स को क्या Yeah, वर्क करता है क्या definitely. उससे देखो, image? I Yeah. recently, I think last week I have posted some clothing brand only. Again, in the Sudham Nagra, I was done that collaboration. He told, sir, 70,000-80,000 only views we got. I think we got some good interaction from that one. Why can't you do the boost? I will pay for that certain amount. I told I will not do that one. Either I will re-upload the same reel after few days in peak hours. I will do re-upload. I will, because what will happen na, if you do once the boost for that reel na, it will become habit for Instagram. Algorithm will catch that one. तो जितना भी उनका जो कोडिंग रहता है बैकग्राउंड से, तो नेक्स्ट रील अब तो वो देखेगा कि साला बूस्ट मारेगा, इसको हम नहीं करेंगे इसको रीच। सो बूस्ट जो है इमीडिएट, अब देखो वहाँ पे क्या करते हैं, बूस्ट लगाने के लिए अगर आप आईफोन से कर रहे हो एप्पल सर्विसेज चार्जेस सबको देना पड़ता है, लैपटॉप से कर रहे हो अगेन वहाँ पर भी जीएसटी कट रहा है। तो सब कुछ अगर 500 का आप बूस्ट ले रहे हो तो आपको सर्विस एक्चुअली मिल रहा है 430 का। तो वो भी 430 में क्या होता है, आप एक डे का ड्यूरेशन लगा दे रहे हो, एक दिन का बूस्ट है तो 23 आवर्स तक आपका वो स्टे ऑन रहेगा, और लास्ट 1 आवर में उसको कर देगा। अब समझो इवनिंग के टाइम आप बूस्ट कर रहे हो 10 बजे या 11 बजे, तो नेक्स्ट 24 आवर्स में इवनिंग के 10 बजे वो आएगा, 1 घंटे के लिए बूस्ट लगेगा, टकाटक फॉलोअर्स बढ़ेंगे, 100-200 व्यूज आएंगे, 50-60 हज़ार, वो चला जाएगा। तो ऐसा सैलाब, ऐसा सुनामी नहीं चाहिए। देखो हमको थोड़ा अभी उसको कंटेंट को और बेटर करो और रिपब्लिश करो, दैट विल साउंड्स गुड। लेकिन ये बूस्ट वाला तो फेल ही है आइडिया, बिकॉज वो एक बार बूस्ट करेंगे ना तो नेक्स्ट से आपका कोई भी रील वायरल नहीं होगा। दिस इज 100% श्योर। बट लोगों को दिखाने के लिए कि इसमें बूस्ट आ रहा है, व्यूज है, तो वो दिखाने के लिए आप कर सकते हैं, बट आपका पेज का जो रीच है कंप्लीटली डाउन हो जाएगा। न्यू कंटेंट क्रिएटर्स जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं, मैंने देखा कि कुछ कंटेंट क्रिएटर्स बहुत अच्छा कर रहे हैं, मतलब विद इन 3 मंथ्स दे आर गेटिंग अ वेरी गुड रीच, बट कुछ कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो बहुत अच्छा नहीं कर पा रहे। तो क्या सजेशंस आपके साइड से रहेंगे? हाँ, या लाइक देखो अभी क्या है, हर चीज़ में कंपटीशन है, हर फील्ड में, हर बिजनेस में कंपटीशन है। कंटेंट क्रिएशन में सेम थिंग है। अगर आप समझ पा रहे हो कि आपका नीश क्या है, आपका टारगेटेड ऑडियंस क्या है, आई एम डूइंग द फूड ब्लॉगिंग, तो फूड ब्लॉगिंग ही मेरे को करना है। अगर मैं जाके इनिशियल स्टेज में, जब तक सर्टेन फॉलोअर्स मेरे बकेट में नहीं है, उस फॉलोअर्स को कुछ भी क्रॉस सेल करो, चलेगा। लाइक इफ आई हैव 1 लाख प्लस फॉलोअर्स फूड ब्लॉगिंग से आए हैं, तो वो जो कस्टमर्स, जो व्यूअर्स मेरे देख रहे हैं, दे डू डेफिनेटली रिक्वायर द गुड क्लॉथिंग। तो वो कस्टमर्स को हम, दिस इज कॉल्ड क्रॉस सेल। तो उनको जो है हम अच्छा सा परफ्यूम भी बेच सकते हैं, समथिंग होम अप्लायंस भी बेच सकते हैं डेफिनेटली। तो अभी जो क्रिएटर्स रहते हैं तो दे शुड स्टिक ऑन व्हाट एवर दे आर डूइंग, दे शुड अंडरस्टैंड के व्हाट काइंड ऑफ नीश दे आर टारगेटिंग, एंड द सेकेंड थिंग इज दे शुड अवे फ्रॉम द नेगेटिव पीपल। उनको जो है अपने ठान लेना है दिमाग में कि आई वांट टू ग्रो इन सोशल मीडिया नेक्स्ट 2-3 months. I will give an example. When I started in 2-3 years back, one of my well-wisher, he is an ECO, government employee. His name is Uzaid Beg. He told me, भाई तू गलत जा रहा है, तू गलत जा रहा है। मैं एक काम करता हूँ, बिकॉज ही इज़ माई वेल विशर, ही इज़ मोर देन माई एल्डर ब्रदर। सो ही टोल्ड मी कि भाई देखो टाइम देता हूँ, इफ़ यू वांट टू डू आई विल गिव एवरीथिंग, वॉट एवर प्रॉपर्टीज फॉर ब्लॉगिंग, गिम्बल दे दूंगा, माइक दे दूंगा, सब कुछ आई विल टेक फॉर यू, बट आई विल गिव 3 months ऑफ टाइम। इफ यू आर नॉट डूइंग वेल, इफ यू आर नॉट इंक्रीजिंग योर फॉलोअर्स, देन यू विल क्विट दिस वन, you will do whatever you are doing corporate job, and you will stop this one. I take it as a challenge. Then I started everything. I was more focused, because every day I used to do that one. If there is on shoot, if there is on hotel, restaurant, I do stay in North Bangalore. If they are calling from the Jigni, I used to travel. I know 9 to 6 job, I have become tired, but I want to go there because it's my passion. I can cheat everywhere in every field, but in passion I can't cheat. And the same way, what will happen if you are surrounded by the negative people, they will make tease on you. They will कि ये क्या कर रहा है, क्या बंदा है यार, अच्छे से जॉब करता है, ये क्या, ये फनी वीडियोस बना रहा है, कॉमेडी वीडियोस बना रहा है। तो टिल यू गेट द सर्टेन फॉलोअर्स, थोड़े दिन आपको उन लोगों को इग्नोर करना है, उनके ग्रुप से एग्जिट होना है, उनके बाउंड्री में नहीं रहना है। जब आप खुद हो जाओगे, आपके फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे, सो दे विल आस्क। आई पर्सनली एक्सपीरियंस द पीपल्स हु यूज्ड टू टीज ऑन मी, दे आर आस्किंग मी, भाई एक कोलैबोरेशन है, आप करोगे क्या, हाउ मच डू यू चार्ज एज ए रेम्यूनरेशन, ऐसा पूछते हैं। सो दिस इज हाउ वी हैव टू डू, वी हैव टू बी इन सच सर्कल,
Like if I am a food blogger, many food blogger community, many food blogger groups are there. We have to be attached with that people, so we can get the good ideas. What is trending thing is happening. We have to work on that one. अगर आप एक ही तरह का कंटेंट बना रहे हो, उसमें कुछ भी ह्यूमर नहीं है, कुछ भी ट्रेंडिंग ऑप्शन नहीं है, तो आप 10 साल भी करो, उसमें आप ग्रोथ नहीं हो पाएंगे. You should survey in the market. What kind of content their people are consuming. अब धुरंधर का व्यू आया था, हर कोई धुरंधर का रील बना रहा है, तो उसको सेम कंटेंट रखने से उसके साथ जो है उसमें मॉडिफाई करो, अपना स्टोरी ऐड ऑन करो, आप फूड की तरह इसको करो, वो अभी और ज्यादा उसमें टेस्ट देगा. सो दिस इज हाउ वी हैव टू डू दैट वन. सो आपका कोई ऐसा अनएक्सपेक्टेड बहुत बड़ा कोलैबोरेशन जो आपको अनएक्सपेक्टेडली मिला हो? Yeah, it's about Saudi Arabia. Like I was went to perform the Umrah. तो वहाँ पे मेरे को इंडियन पैराडाइज बोल के एक रेस्टोरेंट है, दे यूज्ड टू वॉच माई ब्लॉग्स. आई पुट ऑन माई स्टोरी कि आई एम कमिंग टू द सऊदी अरेबिया, आई एम परफॉर्मिंग द उम्रा, बिकॉज यहाँ पे 10-15 दिन मेरा मोबाइल जो है का सिम मेरे को लेना पड़ता है. तो आई विल बी नॉट अवेलेबल इन इंडियन नंबर, सो आई एम फ्लाइंग टू सऊदी अरेबिया. देन दे विल रीच आउट मी, दे टेक्स्टेड मी, प्लीज कम टू आवर होटल एंड आई वांट यू रियली वांट टू द एक्सपीरियंस, बिकॉज many people's devotees go to Saudi Arabia to perform Umrah and Hajj, but they don't know where actually we can get our Indian food. तो वहाँ पे क्या होता है ना, वो जो पूरा रोटी सब्जी, ये बड़ा बड़ा रोटी रहता है उनका अलग ही एक फूड स्टाइल है, तो हम लोग वहाँ पे नहीं खा पाते हैं उसको. तो हमको एक बार 2 बार अच्छा लगे. मैं वहाँ पे गया एंड वहाँ पे जो है इंडियन पैराडाइज, आई वाज इन मदीना शरीफ, सो दे कॉल्ड मी, आई वाज गॉन एंड आई एक्सप्लोर्ड एवरीथिंग. तो वो उसका इतना अच्छा इम्पैक्ट हुआ, जो भी उम्र को जा रहा है उसी होटल में जा रहा है, साउथ इंडियन फूड को एंजॉय कर रहा है. दिस इज हाउ दैट ओनर कॉल मी कि टोल्ड भाई थैंक्स ए लॉट बिकॉज आप आए यहाँ पे एक्सप्लोर करें, बिकॉज दे डजंट नो. वहाँ पे क्या होता है ना, अरेबिक लैंग्वेज है, हमारा हिंदी, तो पीपल डजंट नो. मोस्ट ऑफ दम विल फ्लू थ्रू द एजेंसीज ओनली. एजेंसीज क्या करते हैं कि इतना पैकेज रहता है, तो वो जो फूड देते हैं वही खाना है वहाँ पे. अच्छा. तो आप बाहर जाके खाएंगे तो आपको रियाल देना पड़ेगा, आपको पता नहीं है कि कहाँ पे किस स्ट्रीट में क्या है. तो मैं जाके जैसे ही रील बनाया तो मेरे को कमेंट कर रहा है कि आई वेंट दिस रेस्टोरेंट, रियली फूड इज़ वेरी गुड. वहाँ पे इन लोगों को इडली डोसा मिल रहा है एंड यहाँ पे अंबूर बिरयानी मिल रही है हैदराबादी विथ इंडियन फ्लेवर्स, इंडियन रेसिपीज के जो कुक है इंडियन. तो वो it impact very beautiful for the people, and whoever the coming back, they're still commenting. Still I used to, in every week 2-3 comments on that video, yeah bhai I enjoyed the food of the delicious South Indian meals over there. So that's for the beautiful experience to perform the Umrah. I went over there. Even I do have a lot of collaboration from that one reel. I got many of the collaboration, they are in lined up. Inshallah I'm planning to go in June or July. So then I will explore more the things. I think it is great talking to you. Yes. Saket. Yeah, it was a lot of learnings. Yes, I hope my audience will relate to this and apply in their day-to-day life. definitely. And do follow House of Manthan for amazing content. बहुत ही अच्छे से स्टोरी टेलिंग करते हैं. एंड डू फॉलो मी शकीर रखी, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक सभी जगह पे फॉलो कीजिए. इसी तरह से हमको प्यार कीजिए. तो थैंक यू सो मच. साइनिंग अप फ्रॉम हाउस ऑफ मंथन. Thank you.